next topic we are going to start, that is going to be electron negativity. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हाँ भाई, क्या जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में? कोई कुछ जानता है? ठीक, ओके, दिस इज कंबाइंड टर्म है ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन और फिर नेगेटिविटी नहीं लिखेंगे। यस, किसी ने हाथ उठाया था? यस, हाँ Sir, it's a grid of electron. यस, आई हैव टोल्ड यू दिस, Hello sir. है ना? हाँ हाँ, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने बोला था। सो यस, करेक्ट। सो दिस इज जस्ट, वी कैन से, है ना, एक सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट इज ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। ओके, सो दिस इज greed for electrons if element is present in combined state. combined state का मतलब है if it is participating in bonding, है ना? In short, we can say forming bond. So we are not defining this for isolated gaseous atom, है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक गैसेस एटम के लिए है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कब है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस हियर? तो जैसे अगर मैं बात करूं, क्लोरीन इज गैसेस एटम ओवर हियर एंड दैट इज accepting electron to form Cl minus, then you will say this is delta H is electron gain enthalpy. Okay, this is going to be. But when I talk about this, chlorine is pulling the electrons from hydrogen, you know, in combined state when it is forming a bond with hydrogen. Then hydrogen is losing electron and chlorine is gaining electron. Then you will say chlorine is more electron. You will say chlorine is more electron negative element than hydrogen. So the simple language, you can understand that whenever two elements are going to, let's say, form a bond, then one of them are going to be more electron negative and another one is going to be less electron negative. So the more electron negative element is going to pull the electron and the less electron negative element is going to lose the electron. Okay. हाँ बोलो सर आपने डेल्टा ऊपर एच के ऊपर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस क्या लिखा है? एच के ऊपर डेल्टा, ये तो एफिनिटी है ना, नेगेटिव है। क्लोरीन हाइड्रोजन, नो सर, हाइड्रोजन और ये क्लोरीन चार्ज है, चार्ज। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का मतलब क्या है? दैट इज द, ओके, उल्टा लिख दिया मैंने। दिस इज गोइंग टू बी प्लस, दिस वही इज सर उल्टा लिखा है ना। हाँ सर ओके सर। हाँ सर वहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो हाँ पॉजिटिव सर, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एफिनिटी पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन गेन। तुम कंफ्यूज हो रहे हो फिर से भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? सर? अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ सर, ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी नेगेटिव और एफिनिटी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल, है ना? आपने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, तो उसमें डेल्टा का मतलब क्या होता है? पार्शियल। सो दिस इज नॉट कंप्लीट चार्ज, द क्लोरीन इज नॉट टेकिंग कंप्लीट वन इलेक्ट्रॉन, है ना? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो partially, let's say, losing the electron. So if A and B forms bond and XA is greater than, let's say, XA, मतलब ये है electron negativity of A, that is, को XA बोल रहे हैं या फिर chi A बोल रहे हैं। एक बार, so this is going to be, ये क्या है आपका यहाँ पे
This is going to be positive, this is minus, this is negative, and we are saying that is okay. And what will happen if A and B forms bond, and let's say electron negativity of A is greater than electron negativity of B, then what will happen? A is going to pull the electron. ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है B का, so the A is going to pull the electron, and when A is pulling the electron, A is gaining some electron density and B is losing some electron density. So that's why this is called, let's say, dipole formation. ठीक है, डायपोल का मतलब क्या है? टू पोल्स. अपोजिट नेचर. ठीक है, यहाँ पे डायपोल फॉर्मेशन हो गया, राइट. नाउ इफ A and B forms bond and electron negativity of A is approximately equals to electron negativity of B. अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते थे हम. एग्जाम्पल वी कैन राइट HF, HCl, है ना, H2O, NH3, all those examples, right, etc. And here we are writing if A and B forms bond where electron negativity of A is approximately equals to electron negativity of B, then what will happen? Then we will say that charge separation will not happen क्योंकि दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं. यहाँ पे क्या होगा? A and B are going to be remain like this. So now there is no charge separation over here, or very minute charge separation will happen, जो कि इतना appreciable नहीं होगा. So A and B will be like this only. तो यहाँ पे example we can write, let's say CH4, PH3, है ना, and we can write, let's say Cl2, दोनों same भी हो सकते हैं, right? So anything type of this type of, let's say, example we can write, etc. तो यहाँ पे एक तो हम देखिए समझे चार्ज सेपरेशन कैसे हो सकता है, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मीनिंग क्या है? दैट इज ग्रीड फॉर इलेक्ट्रॉन इफ एलिमेंट इज प्रेजेंट इन combined state or if it is forming bond. So the electron negative element is going to pull the electrons, okay, towards itself. हेलो बोलो. सर, फिर ये पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसा नहीं हो गया? हाँ, पोलर और नॉन पोलर ये वर्ड आगे आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है तो ये पोलर हो गया, एंड ये मॉलिक्यूल जिस पे चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है ये नॉन पोलर हो गया. एंड दिस इज वन मोर थिंग, और कि जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आते हैं तो फिर आगे हम डाइपोल मूवमेंट की बात करेंगे. दैट इज गोइंग टू डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर, नॉट द बॉन्ड. बॉन्ड की पोलैरिटी डिफाइन नहीं करेगी. क्या डिफाइन करेगा? डाइपोल मूवमेंट. तो आगे आएंगे वो चीजें थोड़ा आगे. ओके, तो और किसी को कोई डाउट है? चले आगे. चार्ज सेपरेशन क्या है सर? अरे आगे आएंगे ना, ये सब बातें भाई आएंगे, डोंट वरी, अभी नहीं बात करनी है इन सब की, ठीक है. Let's say this electron negativity actually is not like related with energy. It's a relative, let's say, property. So electron negativity is, यहाँ पे नोट लिखना है, electron negativity is a relative properties and it does not have any unit.
So it's not about कि कितना energy release हो रही है when you are going to put the electrons, right? And how much energy, let's say, is going to release, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है? This is just about कि एक तरह से relative property है कि कौन सा element दूसरे के terms में ज़्यादा electronegative है. जैसे एक example मैं दे रहा हूँ. Let's say if I am going to talk about Cl and hydrogen, तो hydrogen और Cl में Cl is pulling the electrons from hydrogen. Now if I am going to talk about HF, then fluorine is also going to pull the electrons from hydrogen. And when I will talk about ClF3, and I will talk about ClF3, so then what will happen? Cl is going to lose electron because fluorine is going to gain electron. The structure is like this. Okay, so Cl is going to lose electron and fluorine is going to gain electron. So this is relative term. कौन कितना powerful है एक तरह से, है ना? हो सकता है तुम किसी से ज्यादा ताकतवर हो, ठीक है, बट हो सकता है तुमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर हो, ठीक है. So that's why here chlorine is more electron negative than hydrogen but less electron negative than fluorine. Okay, ये लिख लो. Just give me 1 minute. Yes. So what is pH3? pH3 again molecule है pH3, phosphorus, hydrogen, and these are, let's say, different. थोड़ा जगह देके करना. मैंने यहाँ पे ClF3 को इधर ही लगा दिया है, right? So be careful. हाँ बोलो. What is written at the top? Delta negative, more electron negative मतलब delta. ClF3 को बोलते कैसे हैं? तो ये एक्चुअली जैसे मान लो CO2 हो, तो CO2 का नाम क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. समझ में आया? कार्बन, 2 ऑक्सीजन, डाई ऑक्साइड. यहाँ फ्लोरीन माइनस में है, सो दिस वाई इट इज गोइंग टू बी फ्लोराइड, राइट? F माइनस क्या होता है? फ्लोराइड, ठीक है. तो CO2 में देखो, CO2 में क्या है? कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है, ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है, ऑक्साइड, ओके, नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए. सो कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम ओवर हियर? क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड. एनी तो ये बात समझ में आ रही है, राइट?
सर हाँ सर बट क्लोरीन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा ना फ्लोरीन से। नहीं नहीं नहीं, एफिनिटी ज्यादा है, क्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा नहीं है। हाउ वी विल अंडरस्टैंड, अभी मैंने बताया कहाँ है, मैंने बस ये बोला है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके, नाउ दिस इज ऑल लाइक आई ऑलरेडी नो बट यू डोंट नो। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके सर, सॉरी सर। बस मेरा ये कहने का मतलब ये था कि आप ये समझ पाओ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दो तीन चीजें हैं जो मैंने यहाँ समझाई है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डिफाइंड फॉर कंबाइंड स्टेट, जब कोई एलिमेंट किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहा है तब हम समझ रहे हैं। उस बॉन्ड ड्यूरेशन, जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे क्या चीटिंग चल रही है ना, कि हमने पार्टनरशिप साथ में की कि कोई आदमी उसमें धोखा दे रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट लाइक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज रिलेटिव, लेट्स से property, so that's why it does not have any unit, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है इसकी, है ना। रिलेटिव कैसे समझाया कि अगर दो एलिमेंट है तो उसमें कोई किसी से स्ट्रॉन्ग मतलब मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो सकता है एंड किसी और से लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी हो सकता है। हेलो। हाँ हाँ सर, आपने वो ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी वाला लिखा है ना ऊपर। हाँ। सर वो मतलब वो क्या है, मतलब समझा अरे नहीं। अरे भाई, एक मान लो, ऐसे समझो, मान लो तुम और तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारा कोई एक फ्रेंड, ठीक है, कोई पार्टनरशिप करते हैं, कहते हैं कि यार चलो हम ये काम करेंगे साथ में, है ना। और मान लो उसमें तुम्हारा फ्रेंड जो है ना वो ज्यादा ग्रीडी है। तो क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप हुई उसमें उसने क्या किया, तुम्हारे पैसे तो खर्च करना चालू कर दिया और अपने बचा के रखा। एंड दैट टाइप ऑफ नेचर यू कैन अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो हाँ जब एक आदमी ज्यादा ग्रीडी हो जाएगा दूसरे से, तो क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देगा, राइट। हाँ बिकॉज हाँ। अब ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग का नेचर कैसे समझ में आता है, इसका बेसिक चीज है जेड इफेक्टिव से, ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि देखो जिन एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव ज्यादा है वो अपने इलेक्ट्रॉन तो खींचेंगे ही खींचेंगे, दूसरे वाले के भी खींच लेंगे, सही है। तो जिनका जेड इफेक्टिव ज्यादा वैल्यू आएगा वो दूसरे के भी इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएंगे। अगर इसका जेड इफेक्टिव कम है और इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब सॉरी उल्टा, ए का जेड इफेक्टिव ज्यादा है और बी का कम है, तो ए विल स्टार्टेड टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, है ना। ये तो शेयरिंग शेयरिंग का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग ना। जैसे मान लो ए और बी ने ओवरलैपिंग की, अब ए के पास भी बी का इलेक्ट्रॉन है और बी के पास भी ए का इलेक्ट्रॉन है, बट मान लो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से रादर देन दिस। तो क्या होगा, ये जो, अच्छा ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ही रह गया, बट ये बी का इलेक्ट्रॉन जो है ना, बी का इलेक्ट्रॉन भी, मान लो बी का इलेक्ट्रॉन, ऐसे मैं क्रॉस से लिख ले रहा हूँ, बी का इलेक्ट्रॉन भी ए की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। बी का इलेक्ट्रॉन भी ए की तरफ शिफ्ट हो गया, तो क्या हुआ, ए पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया या नहीं आया, और बी पे पॉजिटिव चार्ज आया या नहीं आया, समझ में आई बात। हाँ सर वो समझा, बट आपने जो वो ऊपर एक सेकंड ऊपर करो ना। हाँ इधर वो सर, इफ ए एंड बी फॉर्म्स बॉन्ड एंड एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज इक्वल टू बी। अब मान लो दोनों बराबर के ही हो तो नहीं ले पाएंगे ना एक दूसरे से, अच्छा फिर वो एग्जाम्पल। तो वहां पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी नॉन पोलर टाइप। जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन ही है दोनों, तो एक क्लोरीन दूसरे वाले क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पुल कर पाएगा क्या, नहीं ना। नहीं। हाँ, तो दैट्स थैंक यू सर। तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। तो यस, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके की अंडरस्टैंडिंग में है आपका जेड इफेक्टिव। आपको भी मैंने समझाया जेड इफेक्टिव, राइट। तो आप जेड इफेक्टिव को ध्यान रख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। Now this, how we are going to relatively compare, so there are three scientists who has given different scale, okay. So three scientists gave three scale
three different scale measure electron negativity. तो हम 3 की बात कर रहे हैं, and if you are going to see right now इसमें एक दो और भी जुड़ गए है ना. So we are going to talk about पहले दो सबसे ज्यादा important है. तो फर्स्ट है that is going to be Pauling scale. ठीक है. So Pauli has tried to do so based on bond energy है ना. So he has tried to actually calculate what is going to be electron negativity and what is going to be electron negativity difference, because we are talking about relatively. मान लो मुझे ये नहीं पता हो कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है, मुझे ये भी नहीं पता हो तुम्हारे फ्रेंड्स के पास कितनी ताकत है, बट मैं दोनों में जानना चाहूँ कि स्ट्रॉन्गर क्या है, तो मैं क्या देख लूँ, उनका डिफरेंस देख लूँ. आई विल नॉट कैलकुलेट हाउ मच पावर यू आर हैविंग, आई विल नॉट कैलकुलेट हाउ मच पावर ही इज हैविंग, बट व्हाट आई विल डू इज मैं तुम दोनों की लड़ाई करा दूं और जो जीत जाए तो मैं बोल दूंगा वो स्ट्रॉन्गर है, राइट. So this is like kind of relativity we can understand. So Pauling has done this. He has tried to identify the electron negativity difference between two elements. ठीक है. तो electron negativity difference of two elements, so according to Pauling scale, XA minus XB, and this is difference. So that's why I am writing like this. है ना. जरूरी नहीं है कि A ही ज्यादा electron negative है B से. One second. Okay, so let's say if I am going to talk about we will talk about electron negativity कैसे निकालेंगे, we will talk about अनुष्का को. wait, हाँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का. अच्छा भाई ये बताओ, कोई चीज रिलेटिव होती है तो क्या उसका वैल्यू नहीं होता है? मान लो रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी हमने, तो रिलेटिव डेंसिटी में हम इसको बोल रहे हैं x, बट ये काई है, ठीक है. तो when we have seen relative density तो उसकी वैल्यू आई थी ना, यूनिट नहीं थी बस. ओके, so when we are saying xa minus xb, then this is going to be equals to 0.208 under root delta ab, ठीक है, in kilojoule per mole. So this is going to be this is going to be delta ab is going to be energy of AB minus energy of AA into energy of BB. So this is going to be delta AB is nothing but energy का difference है, right? And over here this is kilocalorie, sorry, किलो कैलोरी पर मोल. इसका मतलब क्या है, अगर हम एनर्जी ए और बी के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हम किलो कैलोरी में लिखेंगे, एंड बिटवीन ए एंड बीवी के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हम किलो कैलोरी में लिखेंगे. देन वी विल कैलकुलेट डेल्टा ए बी एंड वी आर गोइंग टू पुट दिस इन दिस फॉर्मूला. Here this value is nothing but ज्योमेट्रिकल मीन, है ना. So अगर कहीं पे ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो, देन दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, और है ना, डेल्टा ए बी कैन ऑल्सो बी गिवन एज ई ए बी माइनस ई ए प्लस ई बी बी डिवाइड बाय 2. देन यू विल से, है ना, अर्थमेटिक मीन.
So we will either write ना ज्योमेट्रिकल एवरेज भी ले सकते हैं, एवरेज, और यू कैन से अरिथमेटिक मीन. Now what he tried to do is, let's understand. तो उन्होंने सोचा कि देखो हो क्या रहा होगा यहाँ पे, right? Let's say we are taking example of HCl. So what we can understand is कि यहाँ जो bond, जैसे ये HCl बन कैसे रहा होगा, let's try to understand with this example. So H2 plus Cl2 is going to form 2HCl, right? This is going to be the reaction. So what is going to happen here? यहाँ ये HH bond break हो रहा होगा, ये Cl-Cl bond break हो रहा होगा, and what is going to form? ये HCl bond form हो रहा होगा, right? So what we are trying to do is, in this whole process, we are trying to understand what is going to be energy change. On the basis of these energy, we are calculating what is the electron negativity difference. ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ where EAB, EAA and EBB are bond energies. In kilocalorie per. ठीक है, ये बात हो गई. Yes, electron affinity and electron negativities are different. तो ये वैल्यू आप लगा सकते हो डेल्टा ए बी की, आप ये वैल्यू भी लगा सकते हो, राइट? आपको पता होगा इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, ज्योमेट्रिकल मीन और अरिथमेटिक मीन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा. सो दीज आर गोइंग टू गिव यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू. यस, बोलो Hello. दानी. गुड मॉर्निंग सर. सर अभी ये EAA ये वैल्यूज हमें दे देंगे कि हमें फाइंड आउट करना होगा? ऑब्वियसली देंगे, तुमको कैसे पता होगा? अच्छा ठीक है सर. ठीक है, ओके, थैंक यू सर. यार ये मैंने तोड़ा है बॉन्ड, दैट इज ब्रेकिंग. ये सिंबल क्या का मतलब क्या है? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, आई एम ब्रेकिंग. क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड, आई एम ब्रेकिंग, एंड हियर आई एम फॉर्मिंग द बॉन्ड. डन, ठीक है. तो ये एक तरीका है. इसी में दूसरा फॉर्मूला है, if bond energies are given in किलो जूल पर मोल, है ना? अगर बॉन्ड एनर्जी किलो जूल पर मोल में दे रखी हुई है, राइट, तो क्या होगा? यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा XA डिफरेंस XB, नथिंग बट 0.102 अंडर रूट डेल्टा AB. ठीक है, और डेल्टा AB आपको पता ही है ये क्या है. लिख लो पहले भाई सब लोग, कोई ऊपर कोई नीचे. ओके, राइट, क्लियर. सर वहां पे वो आपने XA, वो सिंबल क्या है सर? नीचे नीचे सबसे नीचे. ये हाँ सर, डिफरेंस. डिफरेंस. ओके सर, समझ गया.
थैंक यू सर। सर वो डिफरेंस है, मतलब वो सब्सट्रैक्शन नहीं है, मतलब डायरेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का क्या नहीं है? सब्सट्रैक्शन नहीं है। सब्ट्रैक्शन ही है, बट तुम्हें कैसे पता ए बड़ा है बी बड़ा है? तो इसलिए डिफरेंस है, अच्छा, मतलब दोनों में से जो बड़ा होगा उसको जो बड़ा आगे होगा। पीछे। हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। तो बस यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी वो किलो जूल में आएंगी, रूट में है। तो जैसे अगर आपको दिमाग में लग रहा हो कि ये किलो कैलोरी में आता और ये किलो जूल में आता, तो ये 4.18 टाइम्स बिगर होगा। तो 4.18 टाइम्स का है ना, जो रूट आएगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 पॉइंट समथिंग को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू यही हो जाएगी, है ना, 2.08, राइट, 0.102 से। ओके, now let's move on to electron negativity value. So according to Pauling scale, we have electron negativities values like, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट। सो यू कैन रिमेंबर दोज वैल्यूज। हाइड्रोजन की है 2.1, लिथियम की होती है दैट इज गोइंग टू बी 1, सोडियम की है 0.9, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सबकी याद नहीं रखनी है, जिनकी मुझे याद है मैं बताते जा रहा हूँ। 0.8, रुबिडियम एंड सीजियम, सीजियम की है 0.7, तो याद कर सकते हो, ये भी 0.8 के आसपास ही है। These are approximate value, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको मिलेगा, so don't bother about कि थोड़ा आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बेरिलियम की होती है लगभग 1.5, ठीक है, so this is going to be 1.5, magnesium is 1.2, okay, then we are having boron, so boron is 2, aluminum is 1.5, gallium is 1.7 something, 7-8 something, boron, carbon is 2.5, ठीक है, सल्फर इज ऑल्सो 2.5 बट थोड़ा सा कम है, so let's say if I am going to write 2.54, this is going to be 2.4 something, 2.48 type, ठीक है, सल्फर, and selenium is going to further decrease, so nitrogen is 3, let's say 3.06, phosphorus is 2.2, oxygen is 3.5, मैंने यहाँ पे सल्फर क्यों लिख दिया, सॉरी, यहाँ सिलिकॉन लिखना था मुझे, सिलिकॉन की 2 के आसपास ही होती है, ऑक्सीजन इज 3.5, सल्फर इज 2.48, and then fluorine is going to be 4, chlorine is 3.1, bromine is 2.8, and iodine is 2.7 के आसपास, 6-7। So obviously you will be feeling कि यार ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, हमें याद नहीं रहेंगी, so that's why you will just remember the order, ठीक है। कुछ वैल्यूज जो है फेमस वही मैंने लिखी हुई हैं, बट यू कैन रिमेंबर द ऑर्डर। सो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रॉनिगेटिव देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव देन नाइट्रोजन, बट अप्रोक्सीमेटली सेम है ये क्लोरीन और नाइट्रोजन का। देन वी आर हैविंग नाइट्रोजन के बाद वी आर हैविंग ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद वी आर हैविंग iodine, and iodine, then carbon, and then sulfur. These are approximately same, okay,
ऑब्वियसली इट इज हायर, ये थोड़ा सा है, तो कहीं कहीं पे इसकी वैल्यू 2.6 भी दे रखी होती है. सो दीज आर वेरी क्लोज, है ना, आयोडीन, कार्बन एंड सल्फर. देन वी आर गोइंग टू हैव इसके बाद फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरस हाइड्रोजन बोरॉन में this is going to be electron negativity values, right? And ठीक है, तो ये आ गया आपका. फिर इसके बाद आप इतना, बस इतना याद रख लो, ठीक है, इतनी वैल्यूज. अच्छा, दिस इज द ऑर्डर, यू जस्ट रिमेंबर इट. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज का इसको लिख लो एक मिनट. लिख लो. ओके, डन. अब यहाँ पे आपको ये ऑर्डर जो है ना वो ध्यान रखना है. तो फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस. ठीक है, ये सारे अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉन मेटल्स में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर फाउंड बाय दीज एलिमेंट, जो हमने बार बार देखे हैं. सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि इनको याद रख लो. सर आप एक बार वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फॉर्मूला में जाओगे. सर यहाँ पे आपने 0.208 लिखा है, फिर आगे जाके 0.1022 लिखा है. ये वो किलो जूल में है, ये किलो कैलोरी में है. ओके ओके ठीक है ना, वैल्यूज अलग अलग. हाँ. हाँ, बोरॉन के बाद ये सिलिकॉन भी यहीं पे आ जाएगा. ये डायगोनल रिलेशन है ना, तो इनके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग सेम होती है. दिस इज डायगोनल रिलेशन, है ना, तो क्लोज होती है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे वैल्यू सेम मैंने लिखी हुई है, बट थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप यू कैन रिमेम्बर, इनका इतना इनमें डिफरेंस है. ओके, हाँ. सो यहाँ पे पीरियोडिक वेरिएशन क्या है? of electron negativity. So in a period from left to right, Z effective increases, hence electron negativity value increases. Okay. In a group
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। अब डिफरेंस दूर हो जाएगा, मान लो कोई किसी का साइज बड़ा है, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस बड़ी हो जाएगी, तो अगेन जेड इफेक्टिव का जो इफेक्ट लगने वाला है वो कम होता जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस. सो दिस इज गोइंग टू बी एटॉमिक रेडियाई increases, hence electron negativity decreases. तो Z इफेक्टिव ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स से खींचेगा, अगर रेडियाई बड़ी होती जा रही है तो वो फोर्स लगने वाला कम हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज. तो ये जनरल बातें हैं, राइट. Electron negativity values are not defined for inert gases. Hence, है ना, hence these values are assumed as 0. So hence electron negativity values for inert gases is assumed to be 0. यहाँ समझते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि इनर्ट गैसेस कंबाइंड स्टेट में आते ही नहीं है. और ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो डिफाइन कब है, जब कोई एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में हो. तो जनरली क्या कहते हैं हम कि उसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफाइन नहीं कर सकते, और इसीलिए उनको क्या मान लिया गया है, 0. इनको 0 मान लिया गया. हाँ, जेनॉन बॉन्ड फॉर्म करता है, ऐसे तो ये बात सही है, जेनॉन बॉन्ड फॉर्म करता है. बट इन जनरल अगर ऐसे पूछा जाए इनर्ट गैसेस, तो दे आर टॉकिंग अबाउट होल ग्रुप, क्लास की बात कर रहे हैं. जेनॉन भी केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बॉन्ड फॉर्म करता है, ऐसा नहीं है सबके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल का मतलब होल क्लास की बात हो रही है, तो एक आध एक्सेप्शन वी विल नेग्लेक्ट इट. ठीक है. अब बात आती है सेकेंड स्केल. दैट इज Millikan स्केल. Millikan. सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और नोबल गैस इज लीस्ट. अब वहां डिफाइन नहीं है तो यू कैन से 0, हाँ तो लीस्ट. बट अगर ऐसा टर्म अगर आएगा कि किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, तो वहां पे एस ब्लॉक इज गोइंग टू बी द बेटर आंसर, क्योंकि जिसके लिए कोई चीज वैल्यू डिफाइन नहीं होगी तो वहां कहना आसान नहीं है. ये तो मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि कहीं पे अगर ये स्टेटमेंट आ जाए कि इनर्ट गैसेस की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 0 मानी गई, देन यू कैन अंडरस्टैंड ओके, हाँ ठीक है. ठीक है. तो नेक्स्ट स्केल है सेकंड स्केल, दिस Millikan स्केल. एंड अकॉर्डिंग टू Millikan, XM is nothing but ionization energy plus electron affinity divided by 2, where ionization energy and electron affinity are given in electron volt per atom. तो यहाँ पे यूनिट याद रखना, यहाँ पे ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. Relation between Millikan scale and Pauling scale. तो जब Millikan ने जो वैल्यू निकाली, उनका जो ऑर्डर था ना, वो बिल्कुल सिमिलर था जो पॉलिंग ने बताया. Millikan के थ्रू ही सेम बातें, सेम ऑर्डर मिला, बट द मैग्नीट्यूड जो वैल्यू थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी. तो उसमें एक कॉमन फैक्टर देखा गया कि जनरली जो Millikan स्केल है वो 2.8 टाइम्स मोर देन Pauling स्केल. सो we can write the values
through Mulliken scale are 2.8 times higher than Pauling scale. तो भाई देखो, दो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी रिजल्ट निकाले, उन रिजल्ट में जो ट्रेंड था वो सेम मिला हमें, राइट? तो फिर क्या किया गया? What we have tried to do is we have tried to let's say correlate these two scales. तो क्या निकल के आया कि x Pauli is nothing but xm divided by 2.8. तो जैसे अगर हमने पाउलिंग स्केल में हमने बोला है कि ये फ्लोरीन का 4 है, तो मलिकन स्केल में कितना होता है? 4 into 2.8, तो 28 का 4 टाइम्स कितना होता है? 11.2, तो ये 11.2 आ जाता। XM मलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या आ रही होती? 11.2, ठीक है। अब अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल के देखोगे तो वो 11.2 के आसपास ही कुछ आ रहा होगा, ठीक है। These are approximate values, है ना? ये 2.8 टाइम्स लगभग बड़ा है, इसलिए फिर इस तरह से रिलेट किया गया इसको। ओके, इतना बात समझ में आ रही है? यहाँ पे यूनिट क्या रखना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक मिनट में आपका मॉड्यूल भी खोल लेता हूँ, सो देन वी कैन रिलेट समथिंग। जैसे ये क्वेश्चन है, Mulliken scale of electron negativity depend upon, तो we know this is ionization potential, electron affinity। इसमें तो दो ही क्वेश्चन है। I'm trying to let's say find So let's try to solve this question. ये मैंने शायद बता दिया है क्वेश्चन, ये शायद बताया हुआ क्वेश्चन है ना। हाफ ऑफ द अवोगाद्रो नंबर दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 1 मोल, ठीक है। हाफ ऑफ द एटम ऑफ एक्स ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन टू अदर हाफ ऑफ, इसका मतलब क्या है? हाफ मोल is going to lose electron and half mole is going to gain electron. If 409 kilojoule must be added if the X minus ions are subsequently converted into X plus and addition of must be added, ठीक है। तो जब इसमें ये करने गए है ना, तो यहाँ पे हाफ मोल के कारण आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, हाफ मोल के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी which is going to be negative in nature. So that's why this difference, electron affinity is going to be negative, मतलब electron affinity is positive, electron gain enthalpy is going to be negative. So that's why this value I am just writing, thus this is going to be delta H electron gain enthalpy by 2, that is given as 409. अब कह रहे हैं कि x minus से अगर if x these x minus are subsequently converted into x plus, तो x माइनस से कहां पे पहुंचे? पहले x पे पहुंचे और x से यहां तक पहुंचे, x प्लस तक, ठीक है। देन दिस एनर्जी इज 733, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जो मैंने अभी आधा अधूरा बताया वो ये है, x से x
प्लस में पहुंचे बाय रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड बाय एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन x माइनस में पहुंचे. नाउ लेट्स से दिस इज वैल्यू इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ x. ठीक है, सो आई विल राइट दिस इज द x. लेट्स से इसको मैं मान लेता हूं a just for simplicity, and this is going to be b. Now you know this is going to be positive value and this value is going to be negative. ठीक है, आधा आधा मोल है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा a/2 माइनस b/2 इज 409. अब x माइनस से अगर आप इधर जाओगे तो इसका मतलब क्या, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. सो पॉजिटिव प्लस b/2 आ जाएगा, है ना, हाफ मोल के लिए. फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सेम प्लस a/2 दैट इज गिवन. So a/2 plus b/2 is given as 733. Calculate IE, तो ये निकाल लो. ये दोनों कट गया, ये a आ गया, a is equals to, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1142. एंड b कितना आ जाएगा, b फिर इसको कर लेंगे, इसको डिवाइड बाय 2 करके, है ना. दैट इज गोइंग टू b/2 plus a/2 is 733. So b/2 is nothing but, इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 and this is 71. तो 733 minus 573. So this is going to be 129 plus 33. 129 plus 33 is 162. So b/2. So b equals to कितना आ जाएगा, 324. और इफ यू आर गोइंग टू राइट, है ना, माइनस के साइन, तो ये माइनस 324. कैलकुलेट IE और EA ऑफ x इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या करेंगे, अब डिवाइड बाय 96 करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी. ये की वैल्यू किस में आई, किलो जूल में, राइट. एंड देन वी विल सॉल्व. सो वी विल कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, मैं चाह रहा था कि मुझे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्वेश्चन मिल जाए. अच्छा, जैसे ये क्वेश्चन है ना, जैसे आई एम ट्राइंग टू लेट्स से गिव लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग. कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शुड प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली इन गैसेस फेज. इसका मतलब क्या है कि पूरी रिएक्शन में अगर डेल्टा H निगेटिव आ जाएगा, पूरी रिएक्शन का डेल्टा H निगेटिव आ जाएगा, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी. जेनॉन से जेनॉन प्लस बनने में आयनाइजेशन एनर्जी लग रही है, और हीलियम प्लस से हीलियम बनने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हीलियम प्लस लग रही है. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम दे रखा है ना, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा. अपोजिट हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सो बनेगा हीलियम प्लस. तो हीलियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो सेम एनर्जी निकलेगी. सो हीलियम से हीलियम प्लस बनने में कितनी एनर्जी गई, 1170. और हीलियम प्लस से हीलियम बनने में कितनी एनर्जी निकली, -2372. तो ये क्या हो गया, नेगेटिव. तो ये हो गया स्पॉन्टेनियस. ऐसे ही आप सिलिकॉन से सिलिकॉन प्लस देख लो. सिलिकॉन से सिलिकॉन प्लस बनने में आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 786, और क्लोरीन से क्लोरीन प्लस बनने में कितनी आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, 1255. तो ये क्या हो जाएगा, -1255. दिस इज आल्सो गोइंग टू बी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस. F माइनस से F बनने में, ठीक है, F माइनस से F बनने का मतलब क्या है, दिस F माइनस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ F दे रखा है, दैट इज गोइंग टू बी F जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F माइनस बनाएगा. तो इसका उल्टा क्या है, जब F माइनस लूज करेगा तो यहाँ -328 एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे +328. आयोडीन इज गोइंग टू गेन द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन इज माइनस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 298. ठीक है, तो बस इससे आंसर क्या है, पॉजिटिव. तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ, ये दोनों स्पॉन्टेनियस.
चलो फिर अब मैं चाह रहा था कि मुझे कोई एक वैसा क्वेश्चन मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट ए आर एक्स एंड वाई, हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज एक्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वाई, एंड यू डोंट नो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, डिवाइड बाय 2, क्या हो जाएगा, दैट इज 2x प्लस इक्वल्स टू y प्लस IE, that IE is nothing but 2x minus y। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो और देख लेते हैं, अगर एक आध कोई क्वेश्चन और दिख जाए। ये समझ में आ रहा है इसमें कैसे करना है, राइट? थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। अच्छा, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है जो खुद से हो जाए, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग क्या है, जो रिएक्शन खुद से हो जाए। वही रिएक्शन खुद से होती है जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जैसे मैं बोलूं कि आई विल टेल यू, just 1 second। जैसे स्पॉन्टेनिटी को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो पानी का गिरना हो, तो पानी का गिरना जो है ना ऊपर से नीचे, वो स्पॉन्टेनियस है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, इट इज गोइंग टू गो डाउन बाय इटसेल्फ। बस आपको क्या करना है, आपको इनिशिएट करना है गिराना। मतलब कहीं पे अगर कोई हिंड्रेंस लगी हुई है, कोई रॉक लगी हुई है, उसको हटा देना है, अपने आप गिरेगा ये, ठीक है। ये हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, मान लो इस पानी को ऊपर फेंकना है, ठीक है। तो यहाँ मोटर लगा दी हमने, जब तक मोटर काम कर रही है तब तक ये ऊपर जाएगा, जैसे ही मोटर बंद, इसका ऊपर जाना बंद। तो उसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब जो रिएक्शन जिनमें ड्राइविंग फोर्स लगता है, लगातार उनको है ना ड्राइव करना पड़ता है, वैसे नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे आप लोगों को पढ़ाई, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब तक धक्का लगना बंद लग रहा है तब तक चल रहा है, जैसे ही धक्का लगना बंद, पढ़ाई बंद, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एनर्जी के टर्म्स में समझते हैं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें जैसे कंबशन ऑफ फ्यूल है, एक बार बस आप बस माचिस लगा दो, है ना, उसके बाद अपने आप जलेगा, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। दैट द बर्निंग ऑफ फ्यूल इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। और उस बर्निंग में क्या निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जनरली जिन रिएक्शन में डेल्टा एच निगेटिव होता है, वो रिएक्शन क्या हो जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है। समझ में आया? देन से यस। ठीक है, हाँ बोलो भाई। रिलेशन बिटवीन मलिकन स्केल एंड ये वैल्यूज आती हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट इज, लेट्स से कि आपने जैसे कहीं पे कोई एक्सपेरिमेंट किया और आपकी वैल्यू आई, है ना, मान लो 12, दूसरे की वैल्यू आई मान लो 2, फिर आपने दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट किया किसी और एलिमेंट के लिए, वहां आया 10, यहाँ आया उसका 1/6, सॉरी 10/6। तो आप कहोगे यार ये रिलेशन बन गया, हमारा ऑर्डर सेम ही आ रहा है, मेरी यूनिट के कंपैरिजन में तुम्हारी यूनिट जो है ना 6 टाइम ज्यादा आ रही है। So that's what is we are trying to say over here. Mulliken scale से जो वैल्यूज आ रही थी वो 2.8 टाइम्स, approximately 2.8 टाइम्स heavier more than Pauling scale। हम Pauling scale यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा एच निगेटिव कैसे आया स्पॉन्टेनियस वाले में? जब आप ये बताओ, जब कोई फ्यूल बर्न हो रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यस और नो? आदित्य, तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना। जब तक मान लो कोई रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब आपको एनर्जी देनी है, तब वो रिएक्शन हो रही है।
तो जहां आपने एनर्जी देना बंद किया वहां पे रिएक्शन स्टॉप हो गई ना, होगी थोड़ी ना, समझ रहे हो? जहां जब तक आप उसको ड्राइविंग देते रहोगे, जब तक एनर्जी देते रहोगे, रिएक्शन होती रहेगी। जैसे हीटिंग ऑफ, मतलब आप कर लो, क्या कहते हैं, वाटर गैस पे रख दिया आपने, है ना, आप उसको जब तक गर्म कर रहे हो तब तक वो गर्म हो रहा है, जैसे ही आपने स्टोव ऑफ किया उसका गर्म होना बंद। तो हीटिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन कूलिंग ऑफ वाटर वो अपने आप हो रहा है, ठीक है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, दैट इज गोइंग टू कूल बाय इटसेल्फ। और उस प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, बाहर एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, सराउंडिंग के साथ अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी, समझ में आया? तो जनरली, हाँ हाँ बोलो बेटा। सर ये स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस वाला समझा मेरे को, लेकिन जब वो पॉजिटिव होता है कभी वो नेगेटिव होता है, वो पॉइंट नहीं समझा मुझे। जब भी वो पॉजिटिव होता है तब वो नेगेटिव होता है, यही तो मैंने बोला ही नहीं है। क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है? सर डेल्टा एच मतलब मैंने बोला ना, पानी गर्म वाला एग्जांपल अभी बताया ना। हाँ, क्या उसमें क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, फिर खुद अपने आप ठंडा हो जाता है। तो गर्म करने के लिए क्या देना पड़ रहा है? हीट एनर्जी, फ्यूल देना डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ वहां पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो अपने आप जब तक पॉजिटिव है तब स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। मैं समझ गया था तुम बस गैस मार रही हो, बस कैसे भी ठीक है, कुछ भी है। अरे भाई जब तक गर्म कर रहे हो, है ना, जब तक एनर्जी दे रहे हो तभी तक तो बस गर्म हो रहा है। अपने आप थोड़ी ना गर्म हो रहा है वो, जहां आपने स्टोव ऑफ किया वहां पे वो उसका गर्म होना बंद। करेक्ट। तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। बोला भी, तुम्हारी पढ़ाई को लेके बोला भी था, ज्यादा धक्का लग रहा है, डांट पड़ रही है, पढ़ रहे हो, जिस दिन डांट पड़ना बंद उस दिन पढ़ाई बंद। करेक्ट? हाँ हाँ। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, ठीक है, जिनको बस आपको इनिशिएट कराना पड़े। ठीक है सर। ठीक है, बस आपको इनिशिएट कराना पड़े, है ना। कई बार रिएक्शन को इनिशिएट भी नहीं कराना पड़ता है, कई बार आपको इनिशिएट कराना पड़ेगा। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल है, आप जब तक बर्न करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक खुद से बर्न नहीं हो रहा है, राइट। खुद से बर्न कब हो सकता है? जब आप मान लो अर्थ का टेम्परेचर ही इतना हो जाए कि इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए। तो कभी कभी आपने देखा है फॉरेस्ट में आग लग जाती है अपने आप, ठीक है सर। तो हाँ ठीक है, तो कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, वो हम नहीं बताएंगे। हमको पता तो है, जहां एनर्जी रिलीज होगी वो वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव, तो वहां स्पॉन्टेनियस होगा। रिलीज होने का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव। ओके समझा, एब्जॉर्ब हो रही है डेल्टा एच पॉजिटिव। हाँ ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलो अभी हम थर्ड स्केल पे चलते हैं, देन वी आर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग सम मोर थिंग्स। burning point of fire is spontaneous or non burning of let's say is going to be spontaneous, अपने आप बर्न हो रहा है। कोई चीज ऐसी जो बर्न हो सकती है ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल स्पॉन्टेनियस। एक बार बर्न होना चालू होगा फिर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप देखते रहो, राइट। बर्न होता रहेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो थर्ड स्केल है वो है ऑलरेड रॉसचॉफ स्केल। व्हाट ही सेड, है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जेड इफेक्टिव की वैल्यूज पे के बेसिस पे बताई वैल्यूज, है ना। So he has also given a one formula, that is electron negativity, that is electron negativity of any element A, that is going to be Z effective divided by 0.359 plus 0.744, 0.359 R square plus 0.744. Sorry, this is multiplied 0.359 Z effective by R square plus 0.744. ये वैल्यू है,
he has calculated, calibrated, बस फॉर्मूला याद रखते हैं, है ना, where Z effective is effective nuclear charge, and R is covalent radii in angstrom. ठीक है. So this is another scale, third scale. But पहली दो स्केल ही जो है ना वो आपके लिए important है. Now we are going to talk about some factors which are going to affect the electron negativity and application of electron negativity. 0.359 है ये, ठीक है. Now we are going to understand factors affecting electron negativity. Yes, part. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, ऊपर का स्केल लिखने का. सर आपने वो लास्ट में क्या लिखा है, कोवेलेंट रेडियाई इन एंगस्ट्रॉम, इन एंगस्ट्रॉम. ठीक है, ठीक है. थैंक यू सर. हाँ, थैंक यू सर. Which scale is most important? Pauling scale. हमने किसकी वैल्यू पढ़ी है? मैंने आपको किसके बेसिस पे दिखाई है ये वैल्यूज? पॉलिंग स्केल के. ठीक है, ये वैल्यूज मैंने जो लिखाई हैं ये पॉलिंग स्केल की बेसिस पे लिखाई है. अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल लिखा भी है ना. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पहला तो है Z इफेक्टिव. ठीक है. तो सेकंड है आपका लेट्स से एटॉमिक रेडियाई is inversely proportional to electron negativity. Here we can see, है ना, ये दोनों बातें. ठीक है. थर्ड ये दो बातें मैं बता भी चुका हूँ. थर्ड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे लिख भी देते हैं. Hence in a period electron negativity increases from left to right. And in a group electron negativity decreases from top to bottom. तो लेट्स से अगर मैं बात करूं है ना ग्रुप्स की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. इन हेलोजन fluorine is more electron negative than chlorine, chlorine is more electron negative than bromine, bromine is more electron negative than iodine. ठीक है. इन ऑक्सीजन फैमिली एंड चाल्कोजेंस सेम ऐसा ही होगा. Oxygen is more electron negative than sulfur, sulfur is more electron negative than selenium, selenium is more electron negative than tellurium. ठीक है. Let's say in alkali metals same, है ना. Lithium is more electron negative than sodium, potassium, rubidium and cerium.
है ना, लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। क्योंकि टॉप टू बॉटम घट रही है और लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, तो सीजियम की सबसे कम होगी। ठीक है, मतलब जो रेडियो एक्टिव नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, वैसे तो फ्रांसियम भी आ सकता है। ठीक है, कैन वी यूज एनी ऑफ 3 स्केल ऑफ फॉर कैलकुलेशन? नहीं, ये तो बस एक कभी कभी पूछ लिया जाएगा, इसके लिए नॉलेज के लिए, हमसे कभी कैलकुलेशन करवाई नहीं जाएगी, एक आध क्वेश्चन में हो सकता है बस कैलकुलेशन। ऑर्डर याद रखना है, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप, इतना ही तो लिखा है बस, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दैट्स इट। मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम फ्लोरीन ना भाई, इतना बार बार लिखा तो चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखा है ये? चाल्कोजेंस। नाउ इन एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल सेम चलेगा, ठीक है। Let's say alkaline earth metal we are having बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, like this. Exception we can see. In 13th group, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ गैलियम। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, राइट, ये इसका ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? जेड इफेक्टिव इज मोर। ठीक है, जेड इफेक्टिव मोर इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 3D। 13th ग्रुप में एक्चुअली होता क्या है कि इन 13th ग्रुप एल्यूमिनियम इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। यहाँ पे ये भी रख सकते हैं नोट, इन 13th ग्रुप एल्यूमिनियम इज लीस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम आती है वहां पे। सर 13 ग्रुप में गैलियम के बाद वो रूल मतलब गैलियम के बाद इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है? नहीं, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है या थोड़ा इंक्रीज होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो गैलियम के बाद भी जैसे हम बात करेंगे, गैलियम के बाद बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम है ना, तो इंडियम का भी लगभग गैलियम के बराबर ही है। और यहाँ पे ये लिख भी सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ इंडियम एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ थैलियम में, थैलियम का ज्यादा है। सेम रीजन है, वहां पे पुअर शील्डिंग लग रही थी ना, जेड इफेक्टिव। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। बोलो। ठीक है, चलो आगे। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन दूसरा ये भी है, आई नो वेदांत को ये पता नहीं कब समझ में आएगा, मैं तुम्हें भगा दूंगा, मैं ये बोल चुका हूँ 2-3 बार।
Why you are doing this? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो एक तो ये है, दूसरा है इन जिंक, अनदर एक्सेप्शन है फ्रॉम zinc to let's say mercury Hg, electron negativity increases down। ठीक है, और ये मरकरी की ज्यादा क्यों है? अगेन है ना, पुअर शील्डिंग ड्यू टू 4f इलेक्ट्रॉन्स, हेंस Z effective increases। तो यही रीजन है, जिंक से मरकरी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है। बाकी कुछ जगह पे ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लगभग अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो जहां ये जो चार मैंने आपको ये अभी बताए हैं ये ग्रुप, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट नाइट्रोजन फैमिली में भी एक्सेप्शन नहीं है। हम कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो कार्बन में भी कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहती है। सिलिकॉन की 1.9 या 2 मान लो तो 2 के आसपास ही रहेगी, 1.999 1.9। एंड हेलो और क्या कहते हैं 13th ग्रुप में तो मैं बता ही चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक्चुअली में एल्यूमिनियम की सबसे कम है और फिर बढ़ रही है। टिन लेड आर एक्सेप्शन लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, यस उसमें भी एक्सेप्शन है। एक मिनट, उसमें भी आप ऐसा लिख सकते हो, दैट इज अनदर एक्सेप्शन वी कैन राइट इन 14th ग्रुप। In 14th group, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज वैल्यूज आर कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन की अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू जर्मेनियम के बाद Sn, और ये थोड़ी सी ज्यादा होती है लेड की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यूज। तो ये एक्चुअली में ये हम कहाँ से ले रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट NCERT, हम NCERT से ये बातें उठा रहे हैं, राइट। तो NCERT वाला सीक्वेंस याद रखना। for the let's say reference I will show you। ठीक है, तो ये आगे भी हम आएंगे, ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं इन पे हम आगे भी आएंगे, राइट। सो यू कैन गेट सम आइडिया ओवर हियर। यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू नहीं दे रखी है, सो लीव इट, इसको छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दिस। So you can see this is है ना 2 1.5, फिर it is increasing 1.6 1.7 and this is going to continuously increase है ना। यहाँ पे this is going to over here। This is for 13th group। Now in 14th group it is approximately constant and down the group it is increasing। Okay, 2.5 1.8 1.8 1.8 and 1.9। So that's the let's say 2 exception you can understand।
ठीक है। सर हाँ, सर इसके लिए कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है या वही रीजन है कि पुअर शील्डिंग? पुअर शील्डिंग वाला ही रीजन है एक्चुअली में। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। Now let's move on to after this exception some other factor, है ना। बोलो अंश। सर वो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के इधर एक मिनट स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ बस एक मिनट में लिख लेता हूँ, एक थोड़ा बाकी है। सर कार्बन का लीड से भी ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? हाँ, ओके सर। टेस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, जब आएगा तो वो ग्रुप पे डालते हैं, देन ओनली आई केम टू नो। एंड मुझे घोड़बंदर का तो पता ही नहीं चला लास्ट टेस्ट में क्या था। ओके चलो आगे चलते हैं, अभी खत्म नहीं हुई क्लास। वेट, नाउ लेट्स से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा और, सो सम अदर फैक्टर्स जो हम आगे पढ़ेंगे। उसमें से थर्ड है चार्ज, और यू कैन से और चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं चार्ज के टर्म्स में बोल रहा हूँ, फिर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट समझाऊंगा। So electron negativity is proportional to positive charge. You can understand Z effective will increase, right? And electron negativity is going to be inversely proportional to negative charge. That means Z effective is going to decrease. So that's why you can understand okay, electron negativity is like this. Now this positive and negative charge is, hence we can say electron negativity is proportional to oxidation state of element. पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एपरेंट चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी एलिमेंट इन कंबाइंड स्टेट। तो जैसे अगर मान लो मैं बात करूं एग्जांपल, इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट MnO, MnO3, sorry, MnO2, Mn2O7, let's say if I am going to talk about like this, तो यहाँ पे Mn और O में क्या हो रहा है, this oxygen is more electron negative than Mn, so that's why क्या हो रहा होगा, oxygen is going to pull 2 electrons. So apparently I am saying कि oxygen is gaining 2 electrons apparently.
इसका मतलब एग्जैक्टली इट इज नॉट गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज अपरेंटली, ऐसा लग रहा है हमें कि क्या होगा कि ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड Mn इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो +2. नाउ MnO2 में देखो क्या होगा, ऑक्सीजन इज गोइंग टू गेन 2 electrons. So how many oxygen are there? For let's say 2 oxygen are there. So that's why total is going to be +4. So this Mn is going to, let's say, lose 4 electrons. Now how many oxygen are there? 7. 7 into 2. How many electrons? These are going to gain 14. So per Mn is going to lose how many electron? Sorry. Per Mn अगर 2 से divide करोगे तो it is going to +7. So you can say this is oxidation state. Whatever is apparent charge coming on these elements, this is called oxidation state. तो जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उतना ज्यादा वो डेस्परेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए. So that's why electron negativity of Mn is going to electron negative. So electron negativity is going to increase if the positive charge is going to increase. So यहाँ पे electron negativity क्या हो जाएगी? Electron negativity of Mn, that is going to MnO में सबसे कम, फिर MnO2, फिर Mn2. ठीक है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये हम निकाल कैसे रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट कितने लोगों को पता है पहले से? कितने लोग जानते हैं? Anyone knows this part oxidation state? नहीं, कोई बात. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट पे से देखो क्या होता है. अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल ले लेता हूं. लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टेक एग्जांपल ऑफ SnCl2 एंड SnCl4. अब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, -1. ठीक है, एंड द Sn इज गोइंग टू, लेट्स से यहाँ पे दो क्लोरीन है, दोनों Sn से जुड़े हुए हैं, राइट, लाइक दिस. That's why both of these are going to pull the electron. So what is the positive charge? +2. Here we are having 4 chlorine. So what is the positive charge? In all these bonds, Sn is going to lose 1 electron, so +4. Now which is having more positive charge? This one. So here Sn is going to be more electron negative. So Sn in electron negativity of Sn क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये याद रखना है. जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस पे बात पे डिपेंड कर रही है? जेड इफेक्टिव पे डिपेंड कर रही है या पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड कर रही है? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी. सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता जाएगा. जितना नेगेटिव होता जाएगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट घटता जाएगा, उतना लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा. Another example, another let's say factor is called hybridization state. Electron negativity is proportional to percentage as character. अभी बस इतना लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमने hybridization state भी अभी पढ़ा नहीं है. So that's why this, just remember this. तो कहीं पे अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखा है sp3, यहाँ पे लिखा है sp2, यहाँ पे लिखा है sp, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना है यहाँ पे? sp3 का मतलब क्या है कि s और 3p मिलके, है ना, 3p's are going to let's say combine and will form sp3 hybrid orbital. ठीक है, 1s and 3p are going to combine. So total how many orbitals are there? 4. 1s, 3p, so 4. So what is the, let's say, contribution of s? 1/4. एक है s है, बाकी 4 में, तो परसेंटेज s करेक्टर 25%. sp2 में कितना है? 1s, 2p, so total 3. So what is the contribution of s? 1/3.
So 33%, 0.33%. And in SP, what is the contribution? That is going to be 1s and 1p. So what is going to be contribution? That is going to be 50%, 1 by 2, 50%. So this is percentage S character. Hybridization आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? Hybridization is nothing but mixing of something, है ना? Mixing of orbitals. Those are called hybrid orbitals. ठीक है? तो ये आएगा इस चैप्टर के बाद. तो ये दोनों जो बातें हमने बताई हैं ये अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, है ना ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है ना हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो फिर है ना रह जाएगा आगे भी. तो यहाँ पे बता दे रहे हैं. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड. मान लो now we are taking example, let's say I am taking example CH triple bond CH, sorry I am taking example C2H6 which is nothing but CCH H H, and then I am taking example of C2H4 which is nothing but C double bond C H H H, and then I am taking example of C2H2 that is nothing but. So hybridization is in C2H6 hybridization of carbon is sp3. Hybridization of carbon here is sp2 and hybridization of carbon is sp and sp. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन की बात करूंगा, हेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन, तो C2H6 is least electron negative, then C2H4, then C2H2. Now let's understand little bit. तो परसेंटेज ऐसे कैरेक्टर कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है थोड़ा सा ये समझते हैं. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि अगर मान लो कार्बन जो है ना वो अपने सारे ऑर्बिटल्स जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, है ना, जैसे कार्बन को यहाँ 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, इसको 4 बॉन्ड बनाने हैं तो इसको 4 ऑर्बिटल चाहिए. अरे पहले जो बता रहे हैं वो तो सुन लो, फिर आगे बोलना कि sp3 sp2 ये सब क्यों लिया. तो कार्बन जो है ना जो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ये ऑल दीज 4 बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी सिग्मा बॉन्ड. शायद ये बात आपको पता होगा. सो हाइब्रिडाइजेशन में वी आर गोइंग टू काउंट ओनली सिग्मा बॉन्ड्स. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. ये अभी आगे के लिए है लेकिन अभी हम थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं. सो ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई. तो सिंगल बॉन्ड में ये सिग्मा बॉन्ड है. सो हाउ मेनी सिग्मास आर देयर? 4. सो दैट्स व्हाई दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. नाउ sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा वो 25% कार्बन के s ऑर्बिटल में होगा. यहाँ पे देखो कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा. सो दैट्स व्हाई sp2. 3 का मतलब क्या हुआ? 1s 2p. सो sp2. यहाँ पे कितना है? 1 सिग्मा, और ये ट्रिपल बॉन्ड में क्या है? 1 सिग्मा 1 पाई, सो टोटल इज 2. सो sp. ना इस sp का मतलब क्या है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिट s का इलेक्ट्रॉन है, दैट इज गोइंग टू बी 50% मोर, 50% इन s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. यहाँ पे कितना है? 25% ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. अब s ऑर्बिटल से फायदा क्या हो रहा है? s ऑर्बिटल में मींस क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस. क्लोजर टुवर्ड्स न्यूक्लियस मींस मोर अट्रैक्शन. न्यूक्लियस की तरफ क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन का, अगर ये इलेक्ट्रॉन 25% s है, इसका मतलब क्या है? 25% प्रोबेबिलिटी है कि s ऑर्बिटल में है. तो इस पे क्या होगा? जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा वो, और यहाँ पे जो ये 50% प्रोबेबिलिटी है ये s ऑर्बिटल में, यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कौन ज्यादा होगा? ये वाला ज्यादा होगा. ज्यादा s परसेंटेज s कैरेक्टर मतलब मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मोर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, मोर अट्रैक्शन. समझ में आई बात? लोन पेयर आगे आएगा कभी, है ना. अभी यहाँ तो कहीं लोन पेयर है नहीं. लोन पेयर का मतलब क्या होता है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पार्टिसिपेट नहीं करे बॉन्डिंग में. तो एक ये हो गया फैक्टर.
तो जहां भी कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज एस करेक्टर के कारण भी बढ़ सकती है। ठीक है, ये एक और फैक्टर है जो हमने बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लेट्स अंडरस्टैंड, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी application of, and this is the end of your chapter. After this, application of electron negativity. ठीक है, so in this we are going to talk about acidic nature पहले, so we will start from here, acidic nature. यहां तक सबको मेरी बात समझ में आई? आज का लेक्चर समझ में आया? I am taking a poll. समझ में आ गया? then say yes, नहीं आया तो say no. अब चलते हैं थोड़ा होमवर्क की तरफ। ठीक है, सर वो आपने नया टॉपिक क्या लिखा है वो बता दो ना, वो एक बार देख लो। application of electron negativity we are going to start, and we will start with acidic nature. आपको पता है ना बहुत सारे एसिड्स हैं, राइट? उनमें किसका एसिडिक नेचर ज्यादा है, कम है, वी आर गोइंग टू टॉक। Okay, almost 100 student has given vote. चलो देखते हैं। Okay, we are ending it. Okay, so okay, 90% students are able to understand. जिनको नहीं आया keep asking. समझ में। अब हम चल रहे हैं सॉरी होमवर्क की तरफ। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ क्वेश्चन ज्यादा नहीं है ना। So let's say we will start solving. तो ये आप पहले कर लो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिविटी में क्वेश्चन थे ही नहीं, मिसलेनियस में थोड़े बहुत हैं। सो ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा बेसिक नेचर, ये मैं कल बताऊंगा तब आ जाएगा एसिडिक बेसिक, राइट? ये सब बातें। सो ट्राई टू सॉल्व टिल क्वेश्चन नंबर 60। जो नहीं आएंगे वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे है कि कौन सा ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक है, बेसिक नेचर क्या है। ठीक है, तो बेसिक नेचर एक्चुअली में है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है। आई एम गिविंग यू हिंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर घटता है तो एसिडिक नेचर घटता है एंड बेसिक नेचर बढ़ता है। आई एम गिविंग यू हिंट। ओके, कल मैं बताऊंगा ये, अगर आप चाहो तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। तो टिल 60 अब आपको करना है, विल डिस्कस, एंड यहाँ पे करना है आपको पूरा 24 तक, और ये जेई मेन। तो ये जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सब सॉल्व कर लो यहाँ तक, जेई मेन तक। सो देन नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, तो जब लास्ट क्लास हमारे पास एक और रहेगी तो हम ये बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो आपका ये पीरियोडिक टेबल इज ऑलमोस्ट डन। क्वेश्चन नंबर जेई मेन एक्सरसाइज में 7 वाले का आइडिया क्या है? 7 वाले का आइडिया क्या है? ओके, which has maximum stability. ओके, स्टेबिलिटी यहाँ पे देखो कैसे लिख दे सकते हैं। फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव करना है, यस, फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव करना है। एक्चुअली मेरे हिसाब से इसमें होता यह है कि बिस्मथ की तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये एक्चुअली में अभी हम लोगों ने करा नहीं है ये वाली चीज, राइट? तो अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो अगर हम +3 के हिसाब से देख रहे हैं देन BiCl3 होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। चेक द आंसर, क्या है आंसर?
ये विंडोज टू जेई मेन है सी, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली में ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, ये अभी हमने किया नहीं है, डोंट वरी। अभी ऐसा है ना इनऑर्गेनिक में ऐसे आगे पीछे क्वेश्चन आते रहते हैं, डोंट वरी, तो जो जहां पे मिलेगा वहां पे हम सीख लेंगे उसको। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी, तो ये देखो +3 बताया हमने, तो इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसको। इसमें आता है एक इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अगर आप मान लो ये आर्सेनिक देख रहे हैं, तो ये सब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन या आर्सेनिक किसी का भी होगा, तो NS2Np3, मतलब ये 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, ठीक है। अब होता ये है कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन लेट से बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सब में, जैसे आपने देखा PCl5, ठीक है, आपने देखा है लेट से यहाँ पे AsCl5 ऐसे भी बन सकता है, राइट, लाइक दैट। तो ये ऑल 5 कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। अब होता ये है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो बिस्मथ के केस में, बिस्मथ में जब हम NS2Np3 लिखेंगे तो वहां पे 4F14 भी आएगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोजर टू न्यूक्लियस होते हैं, और दैट्स व्हाई दे डोंट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर। तो क्या हुआ, बिस्मथ के लिए 5 बॉन्ड बनाना या 5 इलेक्ट्रॉन रखना क्या हो गया, अनस्टेबल, और उसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 वाला। इन सारे के केस में क्या है, 5 बन सकते हैं, बट बिस्मथ में क्या होगा, 5 नहीं बनेगा। तो दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप या ओवर ईयर, जो ये लोअर बैलेंसी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, ये क्या होगी, स्टेबल हो गई, इसलिए BiCl3। समझ में आया? थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने, पूरा तो नहीं बताया है कि इनर्ट पेयर हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए उसका स्टेबिलिटी। एस करेक्टर क्या होता है, परसेंटेज एस, ऑर्बिट लाइक एस ऑर्बिटल की परसेंटेज एक तरह से, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय, टेक केयर। This chapter was a little bit of solving, so only question involving exception theory will be asked. Yes. सर सर एक बार आप होमवर्क फिर से रिपीट कर सकते हो प्लीज? Objective complete, subjective foundation, objective complete, foundation subjective complete, JEE main complete. ठीक है सर, तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जेई मेन है ना? ओके सर, थैंक यू।